You have done, then I will be discussing each question with you. So we are starting with the 4.3 exercise. So let us see. The first question is, find the roots of the following quadratic equation if they exist by a method of completing the square. I'm doing the first one for you, then the rest of the questions will be the similar one. This is 2x square minus 7x plus 3. Can you tell me how you have done this? How many have done this, beta? Please reply. हाँ जी, तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे. Now, next, what you have to do this in this particular question? Please tell me. X square minus 7 by 2x. What is the half of 7 by 2? 7 by 4. Please tell me. Is it clear? हाँ जी. Beta, I'm not able to hear you. Please tell me. Is it clear or not? Sir. Yes, sir. ठीक है. Then it is nothing but 49 by 16 minus 3 by 2. This is nothing but x minus 7 by 4 whole square. Then it is turning out to be 25 by 16. तो इसको सोल्व किया होगा आप लोगों ने. तो x minus 7 by 4 plus minus 5 by 4. Is that okay? तो पहले आपने पॉजिटिव साइन लिया होगा. तो दिस विल इम्प्लाई यहाँ से x3 आया होगा. इज दैट ओके बेटा? एक बार नेगेटिव साइन लिया होगा. वन बाई टू. आई होप पहला वाला पार्ट तो सबका हो गया होगा बेटा. प्लीज टेल मी. हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ. How many have done this question number 3? X minus 1 by x is equal to 3. X is not equal to 0. तो यहाँ तो सिंपली आपको क्या करना है? You have to take the LCM. हाँ जी, यही बना होगा बेटा. हाँ जी, प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. ओके. नाउ सी, या तो मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करूँगा, बिकॉज इसका मिडिल टर्म स्प्लिट इज नॉट एन ईजी वन. तो मैं यहाँ से इसको डिस्क्रिमिनेंट से कर रहा हूँ. a इज 1, b इज -3, c इज -1. देन व्हाट विल बी योर डिस्क्रिमिनेंट हियर बेटा? 9 plus 4, 13. So the roots of this equation will be minus b plus minus under root of d upon 2a. That is 3 plus minus root 13 by 2. Is that okay beta? Please tell me. हाँ जी. Yes, sir. और अगर आप बात करें इसके सेकंड पार्ट की, थर्ड के, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 by 30. तो यहाँ आप क्या करेंगे? यू विल टेक द एलसीएम बेटा. फर्स्ट टेक द एलसीएम. एक्स माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन x plus 4 into x minus 7. यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर -11 आएगा बेटा. प्लीज टेल मी. इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लो. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28. नाउ दिस 11 विल गेट कैंसिल विद इट. ओके. Now we can write this as minus 30
is equal to x square minus 3x minus 28. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. Now it will be x square minus 3x plus 2 equals to 0. इसका तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा भाई, x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएंगे इसके फैक्टर, x आ जाएगा 1 and 2. इज दैट ओके बेटा? क्लियर है भाई सबको? हाँ जी, Yes, sir. ओके. अब देखिएगा नेक्स्ट आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर रहा हूँ. आई एम जस्ट क्रिएटिंग सम स्पेस हियर. जस्ट वेट बेटा, स्क्रीन ही बंद हो गई. My screen is visible, beta? Please tell me. Yes, sir, it is. Okay. चलिए अब आपसे डिस्कस करते हुए मैं वर्ड प्रॉब्लम करूंगा. भाई मुझे आप जवाब देंगे. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सो विल डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विद यू ओनली. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रहमान की प्रेजेंट एज ले लें. फोर्थ क्वेश्चन में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years. अब दो चीज दे रखी है. 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी, 3 years ago x माइनस 3, और 5 years नाउ x plus 5. Is that okay भाई? Please tell me. Is it clear? Now as per this question, the sum of the reciprocal of this, that is 1 upon x minus 3 upon 1 upon x plus 5 is 1/3. I hope the condition is understood or not. Please tell me beta. Is it clear भाई? Yes, sir. Okay. Now you take the LCM, x plus 5 plus x minus 3 upon, let us multiply them, x square plus 5x minus 3x minus 15 is equal to 1/3. So you will be having 2x plus 2 upon x square plus 2x minus 15 is equal to 1/3. Now cross multiply it. This will imply 6x plus 6 is equal to x square plus 2x minus 15. Is that okay भाई? आप लोगों ने ये ट्राई कर रहे थे क्वेश्चन, प्लीज मेरे को क्लियरली बताइए भाई. हैव यू ट्राइड इट? Yes, sir. ओके. तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बन जाएगा -7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0. इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी. क्लियर है भाई? तो x कैन नॉट बी -3 क्योंकि एज तो नेगेटिव नहीं हो सकती. तो दिस विल इम्प्लाई योर x इज 7. तो प्रेजेंट एज रहमान की कितनी आ गई, 7 years. इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी. हाँ जी, क्लियर है भाई सबको ये? बट Yes, sir. only 2-3 students are responding. What about Ashna, Chirayu and Krishiv? Yes, sir. Yes, sir. भाई मैं आप लोगों से एक काम करिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आपने करी है तो मैं डिस्कस करता हूँ. लेट अस सी, अगर जेन्युइनली करी है तो आपके साथ ही डिस्कस करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ हिंट. मैं आपसे पूछ के करूँगा और सबसे. देखिए जरा ध्यान से. 6th क्वेश्चन, 5th करना. 5th. In a class test, the sum of Cephali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects.
Can you tell me how you will proceed in this? Please tell me. Sir, can I tell? Yes, yes, yes. Of course. Sir, like we can take of maths x and of English x minus 30. एग्जैक्टली मैथ्स में x ले लिया और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, क्योंकि सम उसका कितना दे रखा 30, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद And sir, now we can form a equation that x plus q यस एग्जैक्ट into इनटू 30 minus x minus 3 is equals to 210. एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है भाई चिराई, क्योंकि उसमें आगे लाइन में लिखा हुआ मेंशन, अगर उसके 2 नंबर मैथ्स में ज़्यादा आते और 3 इंग्लिश में आते तो उन मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता है। यही है ना? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। x प्लस 2 क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। लेट अस सोल्व इट, कर लेते हैं भाई मल्टीप्लाई। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210, यही आएगा भाई। Yes, sir. So we can write this as minus x square plus 25x, 54 इसमें से जाएगा, 210 में से कितना बचेगा भाई? Minus 156. So this will imply this is nothing but x square minus 25x plus 156। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बताओ क्या आएगा भाई? हाँ जी, प्लीज टेल मी, बता सकते हो भाई? सम 25 आना चाहिए माइनस का, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 156। प्लीज टेल मी। ये बनेगा? प्लीज टेल मी। तो आपके पास आ गया x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, x आपका आ रहा है 12 और 13। तो देखो अब यहाँ एक चीज आपको समझनी है, प्लीज आराम से समझिएगा। अगर x मैथ्स में उसके 12 आ रहे हैं, x तो मैथ्स के लिए लिए थे ना हमने भाई, प्लीज टेल मी, तो फिर इंग्लिश में कितने आएंगे? प्लीज टेल मी। 18। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। अगर Yes, sir. अगर मैथ में 13 आएंगे तो इंग्लिश में कितने आएंगे फिर? 17। तो दीज आर द पॉसिबल मार्क्स। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir, it's clear. Now you can take the screenshot of it. Okay. अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा आशना से। आशना, यू आर रेडी? है जी? sir. चलो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। कैसे करेंगे? So we will let the length is equals to x, and so the other one, sir, x plus 30. देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए आशना। अगर आप यहाँ नोटिस करें, पूरे कंटेक्स्ट में उन्होंने कंपैरिजन शॉर्टर साइड के साथ किया हुआ है, तो अजम्पशन किसको देना चाहिए? शॉर्टर साइड को। प्लीज टेल मी। हाँ जी, है ना? तो Okay, sir. लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी, किस में दे रखी है यूनिट्स? इन्होंने मीटर में दे रखी है ना, तो x मीटर। अब आगे पढ़िए, तो लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी उसकी बताइए जरा, पहली लाइन पढ़ेंगे तो। Sir, x plus 30. लॉन्गर साइड आ जाएगी x प्लस 30, और डायगोनल क्या आ जाएगा? x प्लस 60
प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब अगर कोई भी रेक्टेंगल होती है तो बेसिकली रेक्टेंगल की साइड्स ऐसे परपेंडिकुलर होती है, तो अगर ये मैं डायगोनल ले रहा हूँ, So Pythagoras theorem से sir. यस पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। ये शॉर्टर साइड x ले लिया और ये x प्लस 30 ले लिया। सो नाउ लेट अस यूज पाइथागोरस थ्योरम बेटा। x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे भाई, लेट अस सोल्व इट। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 आएगा भाई, हाँ जी, प्लस 60x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, व्हाट इज द 60 स्क्वायर 3600 Yes, sir. 120x। तो एक x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जरा इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 60x, अब 900 इसमें से जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2700 बचेगा। 100. अब जरा यार इसका मिडिल टर्म स्प्लिट क्या बनेगा, माइनस 900x प्लस 30x बन जाएगा, सीधा सीधा है। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 90 प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90। तो एक बात तो सर्टेन है, x कैन नॉट बी माइनस 30 बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x आया 90, यानी शॉर्टर साइड कितनी आ गई 90। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी 120, क्योंकि ठीक है। तो यही साइड्स निकालनी थी, रेक्टेंगल की दोनों साइड्स आ गई। डन बेटा। Yes, sir. ओके चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई। डन। Yes, sir. Done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। कृषिव, आर यू रेडी? कृषिव सर मुझे डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तुम्हें डाउट है। चिरायू, हैव यू डन? नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्कान। Yes, sir. चलो मुस्कान से मैं पूछता हूँ, मुस्कान बताएगी। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। तो कैसे स्टार्ट करेंगे मुस्कान? Sir, first we will let the larger and smaller side, smaller number to be x and y. चलो ठीक है, एक काम कर देते हैं, चलो तुम्हारे हिसाब से करते हैं। लार्जर तो मैंने ले लिया x और स्मॉलर मैंने ले लिया y। चलो ठीक है। So now, according to question, their square, their difference of square is 180. So we will write x square minus y square is equals to 180. ठीक है। And after this, it is also written that square of smaller number. So smaller number is y. So we will write y square, and that will be equal to 8 times x. 8 टाइम्स X. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। And now Now we will substitute it. Yes, you are correct. Clear है भाई सबको? Please tell me. कृषिव, यस सर। now it is clear. Yes, sir. Okay. Now इसका क्या बन जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट? माइनस 18x plus 10x. now we can take x common. Okay, now see it. अब हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, एक तो -10 आ रहा और एक आ रहा x इक्वल टू 18। अब मुझे एक चीज बताइएगा क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हमारा x जो है, प्लीज सी इट, इज इट पॉसिबल कि दैट x इज इक्वल टू -10? No, sir, we will consider 18 as x. नहीं, बट व्हाट इज द रीजन ऑफ रिजेक्शन?
Can you tell me what is the reason of rejection? So because it can't be negative, and also it is given that y square is equals to 8x. Exactly, because y square is equal to 8x, because if x is negative, then y is not defined. Is that okay? Because Yes. y square equal to 8x means imply that y square is equal to how much? 8 Min, into 18, that is minus 140. नहीं, x की वैल्यू -10 डालेंगे ना यहाँ, तो विच इज नॉट पॉसिबल, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? Yes, sir. Okay, so the only possible value is x is equal to 18. तो x equal to 18 is over a larger number, तो smaller number क्या आएगा? कैसे निकालेंगे भाई? Sir, we will write y square is equals to 8x, then we will put the 8 into 18 कर लेंगे ना? yes, तो what is that? 4 144, 144. So y is equal to plus minus कितना आ जाएगा? 12. 12. तो y is equal to only 12. Is that okay भाई? Please tell me. Yes, sir. क्या माइनस भी हो सकता है? स्मॉलर है, इट कैन बी नेगेटिव, यस. y कैन बी -12 ऑल्सो. प्लीज समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 18 होगा और y इक्वल टू 12 होगा. x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू -12, बोथ आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल. तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन भाई? Yes, sir. Okay. Now the next turn is of Arav. Yes, sir. Let me see the question. 8th question. देखिए 8th क्वेश्चन क्या है. A train travels 360 km at a uniform speed. Okay. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So, how you will proceed in this question, Arav? Yes, sir. Just a minute. We'll assume let the speed of the train be x km per hour. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, Now- then we will take the increased speed as x plus 5 km per hour. No, just wait first. Speed is nothing but distance upon time. तो हम यहाँ टाइम के कंटेक्स्ट में बात करेंगे. पहले देखिएगा ज़रा ध्यान से. तो पहले एक काम करते हैं. 360 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम निकालते हैं. तो टाइम कितना आएगा इस स्पीड से? 360 बाई एक्स. प्लीज टेल मी. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट व्हाट ही हैज, इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर मोर, यानी कि अब उसका न्यू स्पीड कितना आ जाएगा? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो अब उसको डिस्टेंस तो वही 360 किलोमीटर ही कवर करना है. तो आपका t1 कितना आ जाएगा इसके लिए टाइम कवर करने के लिए? 360 अपॉन x प्लस 5. इज दैट ओके? Yes, sir. तो अब एज पर द क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा. अगर ये देखा जाए यहाँ पर जब वो x की स्पीड से चलता है तो वो क्या ले रहा है? 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है ना. प्लीज टेल मी. और यहाँ आप कह सकते हैं, प्लीज सी इट, वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट कैन वी से दैट इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 1 आवर आएगा. प्लीज टेल मी. हाँ जी. Yes, sir. इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी. क्लियर? Yes. तो इसको लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 360. नाउ लेट अस सॉल्व इट. x प्लस 5 माइनस एक्स
इज इक्वल टू 1/360। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। $1800 आ जाएगा। हाँ जी, Yes, sir. okay. Now can you tell me the middle term split of it? Please tell me. क्या आएगा भाई? अगर आपने किया है तो सब लोगों को पता होना चाहिए ना फिर तो। हाँ जी, So it will be minus 45 plus, sorry, 45 minus 45x, 40x. यस। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो x कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। दिस इज योर 8th क्वेश्चन। डन? You're done. Yes, sir. Done. Okay. Now we'll be doing the next question, that is 9th one. Two water taps together can fill a tank in 9 into 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Just see this question. Now how will do this problem? Just wait. ये आप क्वेश्चन करते थे ना, टाइम एंड वर्क, उसी टाइप से क्वेश्चन है भाई ये, ध्यान से देख लीजिएगा। Okay, I am starting the question, just see it. देखिए, हमने मान लिया यहाँ पे दो तरह के पाइप्स हैं। एक तो पाइप विद स्मॉलर डायमीटर एंड वन इज लार्जर डायमीटर। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट द पाइप विद स्मॉलर डायमीटर tap takes X hours to fill the tank. Clear है बेटा? Please tell me. And the pipe with the larger diameter, वो कितना टाइम लेगा बेटा? Please tell me. वो इससे क्या लेगा? X minus 10 hours Yes, sir. to fill the tank. तो ये हमने ले लिया। अब हमें क्या दे रखा है कि जो दोनों टैप है वो उसको मिलके कितने आवर्स में फिल कर रहे हैं। यानी कि यू कैन से दैट बोथ टैप्स टुगेदर फिल द टैंक। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 75/8 आवर्स। प्लीज टेल मी। Yes, sir. अच्छा, एक बात बताइएगा, द पोर्शन ऑफ द टैंक filled by smaller tank in 1 hour कितना फिल होगा बताएंगे जरा? So 1/x. 1/x. Okay, similarly the portion of the tank filled in 75/8 hours of smaller tank कितना आएगा बताएंगे जरा?
So 1 by x minus 10. नहीं, सीधा आएगा 75 बाई 8x। यूनिटरी मेथड 1 घंटे में इतना फिल हो रहा है, तो 75 बाई 8 में कितना आएगा? मल्टीप्लाई तो करना है। प्लीज टेल मी। Yes, sir. सिमिलरली सीधा यूनिटरी मेथड ही तो लगा रहा हूं मैं। पोर्शन ऑफ द टैंक filled by larger diameter tap in 1 hour, वो कितना भरेगा? 1 upon x minus 10। Please tell me। Yes, sir. Now portion of the tank filled in 75 by 8 hours, वो कितना आ जाएगा? 75 अपॉन 8 इंटू एक्स माइनस 10। प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो अब ये दोनों मिलके उस पूरे टैंक को फिल कर देते, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 1 आएगा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Now the equation is ready. So now let us simplify it. Can we write this as 1 by x plus 1 upon x minus 10 is equal to 8 by 75? Please tell me. हाँ जी, मैंने 75 बाई 8 कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 10 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8 बाई 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2x माइनस वो आएगा 10, दैट इज़ नथिंग बट 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. माइनस 230x प्लस 750 is equal to 0. Is that okay? Yes, sir. कुछ कॉमन आएगा यहाँ से? हाँ जी, प्लीज टेल मी। कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 2 पे तो हो ही जाएगा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. 4x स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आ जाएगा? 115। और ये कितना आ जाएगा भाई? प्लीज टेल मी। 375. 375। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना भाई आपको। बताइए क्या बनेगा? अगर कॉमन ना भी ले तो एक बार जरा देखना, जरा प्रोडक्ट करना एक बार। 750 इंटू 8 कितना बन रहा है? 6000 बन रहा है। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो ये तो सीधा ही बन रहा है बेटा, 8x स्क्वायर। जरा देख। 200 into 3. हाँ, माइनस 30 है। 30, sorry. सीधा बन रहा, तो इसी से करो ना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 8x। यहाँ से कितना कॉमन आएगा? माइनस 30। अब यहाँ से देखिएगा x माइनस 25, या तो ये 0 आएगा या x आएगा 30/8, यानी कि x इक्वल टू 25 आवर्स और x इक्वल टू 15/4 आवर्स। ओके, नाउ सी, x cannot be equal to 15/4. Why? Because it is not possible कि जो स्मॉलर टैप है वो 10 घंटे से पहले तो भरेगा ही नहीं। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Is not possible. Yes, sir. Is not possible as time taken by smaller tap
कैन नॉट बी लेस देन 10 आवर्स। तो x तो 25 आवर्स आ गया, तो x माइनस 10 कितना आ जाएगा? 15 आवर्स। तो यानी कि स्मॉलर वन ये ले रहा है और लार्जर डायमीटर वाला 15 आवर्स ले रहा है। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। Yes. तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। मैं इसको दो पार्ट्स में दिलवाता हूँ, पहले यहाँ तक का ले लीजिए भाई। डन? Yes, sir. ओके। फिर यहाँ तक का भी ले लीजिए। डन बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore, without taking into the consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. Now let us do it. It is not so difficult, क्योंकि इसी टाइप के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, अगर if I am not wrong. So now let us start it. हमने मान लिया 10th क्वेश्चन में that the speed of the passenger train be x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी दे रखी है? कैन यू टेल मी? So x plus 11. x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है। और टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों ने जो कवर किया? 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन निकाल लीजिए बाय पैसेंजर ट्रेन। वो आएगा 132 बाई एक्स। प्लीज टेल मी। Yes, sir. एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन? एंड सर जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, 132 अपॉन x प्लस 11। तो यू कैन से दैट 132 बाई x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 मस्ट बी 1। प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा, अब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा भाई। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1 बाई 32। क्लियर है भाई? तो x प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 132। क्लियर है भाई? तो वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू, Yes, sir. ये आ जाएगा 1452। ठीक है जी? Yes, sir. अब भाई इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बताओ, ये भी बड़ा जी का जंजाल है। देखो जरा ध्यान से, क्या बनेगा इसका? So 44x minus 33x. चलो पक्का यही बन रहा है, मान लूं मैं तुम्हारी बात? सर इसको डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हैं सर, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। कर तो लेंगे, इजी रहेगा। फिर वो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आप, और क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 ये आएगा। तो x इक्वल टू 33 आएगा, क्योंकि नेगेटिव स्पीड तो नहीं हो सकता। तो ये तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई। तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी आ जाएगी? x प्लस 11 है ना, 44 Yes, किलोमीटर 44. ये स्पीड आ गई। तो भाई इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन भाई? Yes, sir. ओके। अब जरा लास्ट क्वेश्चन पढ़िए।
sum of the areas of two square is 468 meter square. The difference of their perimeter is 24 meter. Find the sides of the two squares. चलो करते हैं, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें। पहले सम कितना दे रखा भाई? 460। तो हमने अब यहां देखिएगा जरा ध्यान से, डिफरेंस उनके बीच में दे रखा 24 मीटर। कहता फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो भाई एक काम करिएगा, जरा आराम से समझ लीजिएगा। अब क्योंकि डिफरेंस आ रहा तो हमने मान लिया लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, क्योंकि इक्वल स्क्वायर्स तो है नहीं, तभी तो डिफरेंस आ रहा है भी x मीटर। तो इसका पेरीमीटर P1 हमारा कितना आ जाएगा? 4x। Yes sir। अब एज पर द क्वेश्चन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दे रखा है, जरा बताएंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर? 24। तो मान लीजिए अगर इस पेरीमीटर को मैंने P1 माना तो दूसरा P2 ले लो। P2 माइनस P1 इज 4x। प्लीज टेल मी। Yes sir। तो P2 आ जाएगा P1 प्लस 4x। व्हाट इज P1? 4x। एक मिनट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 24 है बेटा। सर आपने गलत लिखा सर, वहां पर 24 आएगा ना, 24 आएगा भाई, वही मैं देख रहा हूँ। तो P1 कितना है? 4x प्लस 24, इसका पेरीमीटर आ गया। प्लीज टेल मी। Yes sir। ओके, अब ये बताइएगा देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे भाई। हाँ जी, प्लीज टेल मी। x प्लस 6 आएगा, क्योंकि Yes sir। पेरीमीटर उसका किसी भी स्क्वायर का क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है ना। और हमने दूसरे का ये क्या ले रखा है? 4x प्लस 24। तो x प्लस 6 आ गई उसकी साइड। अब एरिया ले लीजिए A1 ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, x स्क्वायर आ जाएगा। एरिया A2 ले लिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, x प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। प्लीज टेल मी। हमें क्या दे रखा है? इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 460। तो बन गई इक्वेशन भाई। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। Yes sir। Clear। यस सर। तो x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 460। सर और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, यही सब है भाई। सर इससे ये वैसे सर इजी है सर, जो भी है। तो यार अगर तुम्हारे लिए इजी पड़ रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या? तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए, बताओ जरा। पूरा मैथ्स ही इजी है यार, यही नहीं है भाई, इससे अगला चैप्टर भी कराऊंगा और आसान लगेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आसान है, कोई मुश्किल नहीं यार। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बताओ जरा क्या बनेगा? 18x minus 12x। बिल्कुल ठीक है। तो x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 12 आएगा, माइनस 18 तो पॉसिबल नहीं है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, ये तो साइड आई किसकी? स्मॉलर स्क्वायर की। तो दूसरी साइड किसकी आएगी? लार्जर बिगर स्क्वायर की क्या आएगी साइड, बताएंगे जरा? x प्लस 6 है ना, तो 18 आ जाएगी। 12 एंड 18। तो इसका ले लो भाई स्क्रीनशॉट। यस सर। इसमें मेन है कि जो एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी कमांड होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये एज इट इज पूछी जाती है भाई एग्जाम्स में। समझ में आ रही बात? Yes sir। तो आई होप, और इससे अगली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है भाई, मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इससे अगली एक्सरसाइज में। आर यू गेटिंग दिस?